हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें सो दैट मैं ट्राई करूँगी कि आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट पीएचडी अपडेट लेके आई हूँ। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, as you can see here it is written International Institute of Information Technology Bhubaneswar. So triple IT Bhubaneswar has updated about the PhD information. Like you can see here, over here it is written the doctoral program 2021-2022. So PhD notification has came out from triple IT Bhubaneswar, and as we can see here all the important dates are mentioned over here. Submission of online application 18th May 2021. Last date for the submission of online application 18th June. Like the application started from 18th May 2021. It will end on 18th June 2021. Date of selection test 15 and 16 July will be the date of selection test, and commencement of classes will be from 1st September 2021. So all the important dates are written over here. I will just provide the link of the website in the description box, so you can just from there you can download the brochure and you can see the information and you can read it by your own. We will just scroll down and we will see on the first number. In the first number you will see the about the institution, that what is triple IT, ये कहाँ पे है, ये मतलब कैसे इसके about the institute first point में इन्होंने mention कर दिया है. And then second point will be about the doctoral program. You can just go through all these by your own. I will just cover the important aspects. Third point, research facilities. The institute provide good academic and research infrastructure. Some key highlights are high performance computing lab. So you can read. ये सब भी उतना important नहीं हो कि आप लोग अपने से read कर सकते हो. मैं सिर्फ important areas cover करूँगी. Discipline in which doctoral programs are offered. तो आपको कौन कौन सा discipline में PhD programs offer किया जा रहा है वो यहाँ पे mention किया गया है. जैसे computer science and engineering, mechanical engineering, electrical engineering, electronics and telecommunication, basic science and humanities physics. And you can see here the remarks are given कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है या रिमार्क्स डिसिप्लिन्स है जिसमें आप वर्कआउट पीएचडी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. टाइप्स ऑफ स्कॉलर यहाँ पे इन्होंने फुल टाइम पार्ट टाइम सबके लिए मेंशन कर दिया है. फुल टाइम अगर है तो यूजीसी CSIR है तो आप फुल टाइम, इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए भी फुल टाइम है, सेल्फ फाइनेंस के लिए फुल टाइम है, और अगर आप सेल्फ फाइनेंस करते तो उनके लिए पार्ट टाइम भी है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंजीनियरिंग के लिए अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके पास ME MTech होना चाहिए और फिर BE BTech होना चाहिए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से. और यहाँ पे उन्होंने CGPA एंड मार्क्स बता दिया है. साइंस के लिए MSc इज़ कंपलसरी एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए MA in ह्यूमैनिटीज़ इज़ कंपलसरी. Here it is written that computer science के लिए BTech MTech in computer science and engineering, electrical engineering के लिए MTech in electrical engineering. Then we can see over here that electronics and telecommunication engineering में आपका MTech होना चाहिए, mechanical engineering में MTech होना चाहिए, humanities अगर mathematics का सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो तो MSc आपका mathematics में होना चाहिए. अगर आप फिज़िक्स चूज़ कर रहे हो तो MSc आपका फिज़िक्स में होना चाहिए. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि प्रोसीजर बताया है एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उन्होंने बता दिया है, तो आप यहाँ पे जाके खुद से रीड कर सकते हो. इन्होंने वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड किया है. आई थिंक दिस वन इज़ द वेबसाइट लिंक. तो आप यहाँ नहीं, दिस वन इज़ द SBI कलेक्ट. अगर आपका पेमेंट ये वाले SBI कलेक्ट से आप पेमेंट कर सकते हो. और उन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे फॉर्म अपलोड करना है, कैसे रजिस्टर करना है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो.
अब इन्होंने बताया है कि आप कुछ आपको सॉफ्ट कॉपीज़ अपलोड करना होगा, जैसे 10th का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th और डिप्लोमा का होना चाहिए, BE BTech, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वैलिड नेट और गेट स्कोर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर ओडिशा नेटिविटी सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर FTIF कैटेगरी। अगर FTIF कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो ओडिशा का डोमिसाइल होना चाहिए। यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ सेलेक्टेड अंडर FITF कैटेगरी। अगर आप FITF कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हो तो आपको एडमिशन के टाइम ये भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये नेटिव का डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम आपको सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बताया है कि नंबर 1, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आपका पूरा शॉर्ट लिस्टिंग होगा। 2, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो, आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको रिटन टेस्ट देना होगा। उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाई IIIT भुवनेश्वर इन ऑनलाइन मोड कंडक्ट किया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एटलीस्ट 2 बेस पेपर्स, डू अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ दोज पेपर्स एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑफ द रिव्यू। आपको अपना प्रिपरेशन भी करना होगा इंटरव्यू के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। द बेस पेपर विल बी अपलोडेड इन अ सेपरेट लिंक इन द एडमिशन वेबसाइट। The final selection will be done on the basis of academic performance in the written test, research aptitude and personal interview। इन सबका के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। द डिटेल्स रिगार्डिंग द सिलेक्शन टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। आपको कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि एडमिशन के प्रोसीजर के लिए आप उसके वेबसाइट को विजिट करते रहे। द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट इज़ गिवन बिलो। नीचे आपको सिलेबस दिया है कि आपको अगर आप CSE ले रहे हैं तो आपका ये सिलेबस होगा, अगर आप ETC ले रहे हैं तो ये सिलेबस होगा, तो यू कैन गो थ्रू दिस। एंड फेलोशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि आप द UGC CSIR ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्कॉलर क्वालिफाइड इन NET JRF एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर द फुल टाइम स्कॉलर आर एनकरेज टू गेट क्वालिफाइड इन दीज एग्जामिनेशन। अगर आप फुल टाइम हैं, अगर आपका पास UGC NET या CSIR का सर्टिफिकेट, तो आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट फेलोशिप मिलेगा। यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर भी इन्होंने बता दिया है कि ट्यूशन फ़ी क्या होगा। एडमिशन फ़ी आपका 30,000 है, फिर हॉस्टल फ़ी 9,000 है फर्स्ट ईयर के लिए, हॉस्टल अकोमोडेशन 13,000। तो आप ये भी रीड कर सकते हो। फ़ी स्ट्रक्चर और सब फ़ी स्ट्रक्चर इन्होंने फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब दिया हुआ है। सो बस दैट्स ऑल। मैं आपको इसके वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली खुद से रीड आउट कर सकते हैं डाउनलोड करके। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी मुझे कमेंट डाउन करिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।